Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and my dear fellow teachers. How are you? I welcome you in my class that is English for grade 1, and we are going to start unit 8. Its title is When I Was 1. First, we'll discuss the SLO based lecture division. That's here. This is how I have divided this lecture into SLO based lectures. And after that, we'll discuss what the poem is all about. So let's see the lecture division. Lecture 1, under the title of grammar, we learn to choose a or an, and we'll cover the SLO to choose between a or an. In lecture 2, again under the title of grammar, we learned use of comma, and we'll cover the SLO to recognize and use of comma in our list. Lecture 3, under the title of pronunciation skills, we learn rhyming words by changing first letter, and we'll cover the SLO to change the first letter of our word to make rhyming words. Arrange a list of words in an alphabetical order. In lecture 4, we'll recite and understand the poem, and we'll cover the SLO recite poems and nursery rhymes with actions, articulate simple rhyming words in text. Lecture 5, we'll write rhyming words from poem, and we'll cover the SLO to articulate simple rhyming words in text and recognize and write rhyming words from a poem. Lecture 6, under the title of listening and speaking, we'll learn routine greetings, and we'll cover the SLO to demonstrate common conventions and dynamics of oral interaction in group to exchange some routine greetings. Lecture 7, under the title of Read and Think, we'll learn about sizes, and we'll cover the SLO to recognize different sizes. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit, and now let's see what the unit is all about. Its title is When I Was 1, and its theme self or myself. Yes, my dear children, what do you understand when I was 1? क्या समझ में आता है? इस टाइटल का क्या मतलब है? When I was 1, it means when I was 1 year old, जब मैं 1 साल का था. तो इस पोम में शायर ने अपनी जो पोइट है उसने अपनी 1 year से ऑनवर्ड जर्नी को डिस्कस किया है कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें सीखी, और अपने आप को एक्सप्लोर करने को ही तो माई सेल्फ कहते हैं ना, मेरी ज़ात. तो उसने कहा है कि मेरी ज़ात में मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की जब मैं 1 साल का था, फिर 2 साल, फिर इस तरह से डिस्कस किया. लेट्स सी व्हाट ही लर्नड. व्हेन आई वाज 1, आई जस्ट बिगन. जब मैं 1 साल का था तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया. क्या स्टार्ट किया? बेटा ये हर बच्चे के साथ ऐसा होता है. ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा पैदा होते ही हर चीज़ उसको आती है. दिस इज़ हाउ ग्रेजुअली वी लर्न द थिंग्स. तो 1 साल की एज में हम क्या स्टार्ट करते हैं? चलने की कोशिश शुरू करते हैं, खाना खाने की कोशिश शुरू करते हैं, प्रॉपर सॉलिड फूड लेने की. दिस इज़ हाउ वी बिगन, एंड दिस इज़ हाउ पोइट डिड. When I was 2, I was nearly new. जब मैं 2 साल का हुआ तो मैं बिल्कुल नया था. कैसे नया? क्योंकि अब मैंने नई नई चीज़ें देखकर उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया. ये क्या है, ये कैसे है, ये दिस इज़ हाउ वी डू, एंड दिस इज़ हाउ पोइट डिड. When I was 3, I was hardly me. जब मैं 3 साल का हुआ तो मैं बिल्कुल डिफरेंट था. मैं जब जैसे अब हूँ ऐसा नहीं था. आई वॉज हार्डली मी, मैं बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि 3 साल की एज में आप शौरी तौर पर चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं. When I was 4, I was not much more. जब मैं 4 साल का हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे अभी बहुत कुछ, आई एम नॉट मच मोर, मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती, क्योंकि बेटा 4 years की एज में स्कूल में भी आप देखते हैं आपसे बड़े बच्चे हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं जो आप नहीं कर. तो दिस इज़ हाउ वी लर्न एंड वी एक्सप्लोर. व्हेन आई वाज 5, आई वाज जस्ट अलाइव. जब मैं 5 साल का हुआ तो फिर मैंने, आई वॉज जस्ट अलाइव का मतलब है कि मैंने अपनी लाइफ स्किल्स सीखने शुरू किए कि मैंने क्या क्या सीखना है. जैसे हम 5 years की एज में बहुत से बच्चे अपनी हॉबी डेवलप कर चुके होते हैं. मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बाइक राइडिंग सीखनी है, एक्सेट्रा. राइट. सो दिस इज हाउ द पोइट सेज. बट नाउ आई एम 6. अब वो कह रहे हैं, पोइट इज सेइंग कि अब मैं 6 साल का हूँ. क्या आप लोग भी 6 साल के हैं?
आई नो यू आर ऑलमोस्ट 6 या 7 साल की एज है आपकी. सो आई एम एज क्लेवर. वो कह रहा मैं तो बहुत होशियार हो गया हूँ, 6 साल की एज में तो मैं बहुत चालाक और होशियार हो गया हूँ. सो आई थिंक, और अब मैं ये सोचता हूँ, आई विल बी 6 नाउ फॉर एवर एंड एवर, कि मैं हमेशा 6 साल का रहूँगा. दिस इज़ फनी. कोई ऐसे तो नहीं होता बेटा, हम तो हर दिन के साथ हमारी एज बढ़ रही होती है. लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा कि मैंने 6 साल की एज में जो चीज़ें सीख ली हैं अब ये मुझे हमेशा याद रहेंगी. तो हमारी जो एज है वो तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही होती है. और बेटा ये एक नेचुरल फिनोमेनन, दो इट्स अ पोम, और ये बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में जो पोइट है उसने अपने बचपन को आपके साथ शेयर किया है. लेकिन इसके साथ हमें ये एक चीज़ सीखनी है, इट हैपन्स विद एवरी पर्सन. हम जिंदगी के डिफरेंट फेजेस में से गुजरते हैं, ठीक है. जैसे आपका भी बचपन है, फिर आप बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे. दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ लाइक दैट. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने अपनी लाइफ के हर फेज़ में बेहतरीन रहना है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, अच्छा बच्चा बनना है, फिर अच्छा पर्सन, अच्छा फ़र्द बनना है. और हमने अपने मुआशरे के लिए और अपने इस्लाम के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, राइट. और ये बात हमें अल्लाह ताला ने कुरान में भी समझाई है. सूरह यासीन की वर्स 39 में अल्लाह ताला कहते हैं, एंड द मून वी हैव डिटरमिन्ड फॉर इट फेजेस until it returns appearing like the old date stock. कि अगर हम चांद को देखें तो उसके भी फेजेस हैं, वो रोज़ हर रोज़ बढ़ता है, फिर फुल मून होता है, फिर वो रोज़ घटना शुरू हो जाता है. तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक मैसेज दिया है, एक निशानी बनाई है कि आप किसी भी फेज़ में हमेशा नहीं रह सकते. जैसे आप अब हैं, आज से 3 साल पहले नहीं थे, और जैसे आज से 3 साल बाद होंगे उस तरह के आप अब नहीं हैं. सो बेटा द मैसेज इज़ दैट कि हर रोज़ हर दिन एक स्पेशल दिन है और हमने उस दिन को अल्लाह ताला की ओबीडियंस में गुजारना है, राइट, इंशाल्लाह. सो जो भी आज अच्छी बातें हमने सीखी हैं इनको जहन में रखना है, अपने अमल में लाना है, कोशिश करें दूसरों को भी बताएं, राइट. सो दैट्स इट. कल हम इसके ग्रामर के लेक्चर 1 से अपने यूनिट को स्टार्ट करेंगे. टिल दैट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.